Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our very important topic, that is ionization energy. Definition of ionization energy. Ionization energy, the minimum amount of energy is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है कि किसी भी एटम ले, कोई भी एक आपने एटम लेना है। आपके पास सपोज ये आपके पास कोई भी एटम मौजूद है। ये एटम का क्या जो है सेंटर जो है ये आपके पास पॉजिटिव सेंटर है, क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमने क्या करना है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमने यहाँ पे एक शर्त पढ़ी थी डेफिनेशन में कि आपके पास एटम कौन सा होना चाहिए, गैशियस एटम होना चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि एटम गैशियस स्टेट में क्यों होना चाहिए, ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास कोई भी एटम गैशियस स्टेट में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेपरेट होता है, आइसोलेटेड होता है, तो उसलिए उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है तो उस आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपने रिमूव करना है, क्या करना है, इसको आपने रिमूव करना है, तो आपने इसको रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप क्या कहेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, आपको रिक्वायर्ड हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इसको इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। हमारे पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। आपके पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी 2। इट मीन्स दैट if you are going to remove the first electron from the outermost shell, that will be its first ionization energy. It means ke removing first electron from the outermost shell, that is called as the first ionization energy. And the second ionization energy, what is it? Is the amount of energy is required to remove the second electron from the outermost shell. So that is called as a second ionization energy. If you see some examples of first ionization energy, you have example of, for example, sodium atom in a gaseous state. When it remove one electron, it becomes a sodium ion, and you write a electron here. It means that आपको क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से जब कोई भी रिमूव होना था तो उसको जो एरो लाइन के राइट साइड के ऊपर लिखा जाता है। जब आपने सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, सो it has only first ionization energy, so that will be a 496 kilojoule per mole. It is called its first ionization energy. You know that sodium has atomic number 11. It has only one electron into the outermost shell. So आपके पास चांसेस यही है कि अब अपना एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बन जाता है, सोडियम आयन में, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, दैट इज अ 496 किलोजूल पर मोल. फॉर एग्जांपल, you have an example of magnesium. Magnesium has, you know that if you see separately, magnesium has valency +2. It means that magnesium has 2 electrons into the outermost shell. Firstly it remove first electron, then after all it removes second electron. First of all, magnesium when it remove its one electron, it become Mg+1 and E-. It means that is magnesium के ऊपर कितनी वैलेंसी आ गई, +1 की. It have अगर ionization energy, first ionization energy will be, that is a 738 kilojoule per mole. So magnesium, this magnesium when it has lose one electron, it becomes Mg+1 and releases one electron. So its first ionization energy will be 378 kilojoule per mole. So as you know that magnesium has a valency +2, so it has to remove another electron from the outermost shell, because magnesium has 2 electrons into the outermost shell. So this magnesium Mg+1
going to remove one more electron and become Mg plus 2, and it has a release another one electron. So it will have ionization energy second, so that will be 1451 kilojoule per mole. So it clearly shows that magnesium has first ionization energy as well as second ionization energy, while sodium has only first ionization energy because sodium has only one electron into the outermost shell. So this is the first ionization energy and second ionization energy. अब हम ये देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर लेती है. आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर 1 इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज, नंबर 2 is nuclear charge, and number 3 is shielding effect. If you see the relationship between ionization energy and atomic size, there is an inverse relationship between ionization energy and atomic size. अब आपके पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एटम का साइज लार्ज है, एटम का साइज लार्ज है. अब एटम का साइज जब लार्ज होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये आपके पास रुबीडियम का एक लार्ज एटम मौजूद है. अगर रुबीडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, अगर आपने इस आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसका एटम का साइज क्या है, लार्ज है. जब एटम का साइज लार्ज हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगा. जब न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगा तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. इसी तरीके से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद न्यूक्लियर चार्ज. इसका मतलब क्या है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एटम का साइज उतना ही कम हो जाएगा. जब एटम का साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करेगा. तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी. द थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट. इट मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, आपके पास एटम का साइज लार्ज है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से आमने सामने, तो न्यूक्लियर चार्ज ये ज़्यादा फील करेगा एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन. सो जितना साइज ज़्यादा होगा न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. शील्डिंग इफेक्ट जो है आपके पास जितना ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालना उतना ही आसान हो जाएगा. सो वी कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट. अगर हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, हम सबसे पहले देखते हैं ग्रुप में. इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the periodic table, what we see from moving from top to bottom, the atomic size increases. Number second, we see in that case shielding effect also increases. And the third point is effective nuclear charge डिक्रीजेस. एटम का साइज क्या हो रहा है आपके पास, लार्ज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा शील्ड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एयर को आउटर मोस्ट शेल से निकालना ज़्यादा आसान है. दूसरा ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली जो है वो बाउंड करके नहीं रख सकता. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. ठीक है. अगर आप पीरियड में मूव करते हो इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट to right in a periodic table, what you see in moving from left to right in a periodic table, atomic size decreases. Okay, atomic size decreases and effective nuclear charge increases. For example,
you have an atom, this is now nucleus and this is these are the shells. Here we have an electron into the outermost shell. This nucleus pulls these electrons tightly toward itself. As a result of this, it is hard to remove the electron from to the outermost shell. Why? आपके पास क्या है, जब एटम का साइज कम हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली पुल करके रखते हैं अपनी तरफ. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन से दैट इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी increases, while if you move from top to bottom the ionization energy decreases. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. अब आप देखिए, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में एक ये चीज़ पढ़ी थी कि आपने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करना है. ठीक है, आयोनाइजेशन में आपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, बाहर निकालना था. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर लेके आना है. अब इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब एटम में लेके आना है तो आपको पता है कि ये जब एटम इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल्स में आना चाहते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है उसको स्ट्रांगली पुल करता है अपनी तरफ. ठीक है, अब आपके पास क्या है, अगर वो उसको स्ट्रांगली पुल करने की कोशिश करता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एफिनिटी. यानी कि इसका मतलब है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितना लेना चाहता है. जो आपके पास क्या है, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, अब आपके पास एनर्जी कब रिलीज होगी और कब आपके पास एब्जॉर्ब होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन एलिमेंट ए, इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम ए माइनस, सो इट विल हैव इलेक्ट्रॉन affinity 1. So if this atom A minus, which is already a negatively charged atom, gains one more electron, it become A minus. It means it will going to have electron affinity 2. अब क्या है कि in first case में when one electron is added to the outermost shell of any atom which is in a gaseous state, it will have a first ionization energy. If this first ionization energy will be always in negative form, so this reaction will be exothermic. If you want to add one more electron to an atom which is already a negatively charged, so उसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ए सपोज एटम के ऊपर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो ए नेगेटिव है ये इसको एक दूसरे से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपको रिपेल करने की कोशिश करेंगे. तो इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करवाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. इसका मतलब है इन द एनर्जी विल बी positive. It means that the reaction will be endothermic. समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑक्सीजन एक एटम है, न्यूट्रल एटम है. इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम O माइनस, सो इट विल हैव द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 दैट इज minus 141 किलोजूल पर मोल. So this is the unit of electron affinity. If this oxygen O minus, which is already anion, if it gains one more electron, it become O minus 2. तो अब आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ऐड करना है. सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो होगी प्लस 780 किलोजूल पर मोल. इसका मतलब क्या हुआ
कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाए, और देयरफॉर वी कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, वो हमारे पास दो फैक्टर हैं. नंबर वन इज साइज ऑफ एटम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज. आपके पास क्या है कि अगर एटम का फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें, एटम का साइज़ क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है. अब जब एटम का साइज़ स्मॉल होता जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता जा रहा है. अब एटम का चार्ज स्मॉल होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड कराना बहुत मुश्किल है. देखिए जब आपके पास साइज़ छोटा होता है ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करके रखता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उनकी लार्ज है. हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो एटम स्मॉल होते हैं जिनकी स्पेशली वैलेंसी 2 और 1 और 2 वैलेंसी हो, सो दोज एटम विच आर स्मॉल एटम दे हैव लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सही है. इफ यू हैव अ लार्ज एटम and that will have a small electron affinity. Trends of electron affinity. If you see the trends of electron affinity in group and period, if we move from top to bottom in a periodic table, top to bottom in a periodic table, what you see top to bottom आपके पास क्या चीज़ होता है, atomic radius increases. Why atomic radius increases? Because number of shell increases. आपके पास जब atomic radius increase होता है it means that आपके पास effective nuclear charge become less. ठीक है. आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एटम का रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस होता जा रहा है. Nucleus exert weak force on the outermost electron, so the minimum amount of energy will be required to add electron into the outermost shell. So if we move from left to right in a periodic table, the electron affinity increases. Why electron affinity increases? Because if we move from left to right, the atomic radius becomes small and effective nuclear charge will be high. So you can say that it is harder to add electron that is closer to more positively charged nucleus. So you can say that if we move from top to bottom, the electron affinity decreases, while if we move from left to right, electron affinity increases.